Yes, good afternoon to all. Now today discuss distribution of land among the farmer of Palampur. Palampur एक farmer के विषय है. So land I have already discussed. So land is a very important for the farmer. But all the farmer do not have the adequate land for the farming. जैसा कि लैंड नेचुरली है, लैंड द नेचर नेचुरल रिसोर्स है, लैंड इज फिक्स लिमिटेशन, बट सम लैंड is more fertile land and some land is the less fertile. But here we study, we discuss about the farmer of the Palampur. So distribution of the land, Palampur, distribution of land among the people. But, but some farmer have the large land and some very less land. So the mostly farmer, mostly जो farmers है, is the main occupation क्या agriculture है. But here the Palampur, the village Palampur, about 1/3 of the population, about 1/3 of population of the farmer pool is the 150 farmers together without land for the cultivated. 150. So just the number of the farmers 150 landless farmer 60%, 60% medium and the large, and 140 to 40%. So just the distribution of the land among the farmer in Palampur district. So here is just the one diagram. The first, so 150, 150 family, 60 family, and 240. So just the distribute the land. Here. So distribute land. One 150 150 members कहते हैं कि 150 जो है वो विदाउट एनी लैंड फॉर द कल्टीवेशन. ठीक है. दे आर मोस्टली लो कास्ट द पीपुल. जिसमें तक 150 जो है, जो लैंडलेस पीपुल है, जो लैंडलेस फार्मर है, उनको उसकी बैकग्राउंड जाओ, वेरी पुअर बैकग्राउंड, द दलित जस्ट बिलोंग द दलित society, and out of the 300 family who are the land for the cultivated, about the 250. So the 240 here, the 240 families are the plot the land is small size and it less than the 2 hectares. A small size है और क्या more than 2 hectares and less than a small farmer जो है less than 2 hectares. So cultivated area, मतलब cultivated area में देख रहे हैं कि 30% है and 20% टू फिगर दिखा रहे हैं. तो पहला देख रहे हो कि इसमें जो है स्मॉल फार्मर लेस देन द 2 हेक्टेयर. यहाँ है कि मीडियम और large, the farmer more than the 2 hectares. Just the correlated one. So distribution of land among the farmer, the Palampur, the distribution of the cultivated area among the farmer. So to the cultivated area, one the 30% and 20%. 30% cultivated area. So farmers
small farmer. Here the less than the 2 hectare and 20% the cultivated area among the farmers. So here mix the two group, one medium and the large farmer. So here the more than the 2 hectares. You understand? समझ रहे हो? Hello? So कहते हैं कि अब एक क्वेश्चन है, why distribution of cultivated land is unequal in the farmer? कहता है कि why the distribution of cultivated land is unequal in Palampur. So here, so discuss, so very important point. So why? So distribution of cultivated land is the unequal in the Palampur. So distribution of cultivated land is unequal in Palampur. So large number of the small plots are cultivated. Large number of the small plot is cultivated by a small farmer. More than the half of the area of the village is covered by the big plot. But some is the distribution of the village, the land, the India. So people still depend on the agriculture. कहता है कि large number of the people are so depend the agriculture. So agriculture is the main occupation. So everywhere. So just but we study discuss and in Palampur district. Sorry, village Palampur. So some factors are responsible for the growth, develop the cultivated land area. So fragments, land holding efforts where the made the past the consolidated and unconsolidated land holding. The presence of the increase the population and the practice is dividing the land equally among the hands. So क्यों दिक्कत है? ड्यू टू द फार्मर के कारण. तो कॉज क्या है? द एक्सेसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग of the farmer, the holding the country. It means we people are just towards in the modern to apply the modern technology. So just the forget is slowly in the traditional farmers naturally have. So that 1/3 of the land holding account that 3.3% are the arable land. Less than the half of the hectares are only the 4%, but they cover about the 31% of the cultivated area. So the per capita availability of the land in India is uneven cultivation. So distribution कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा कि distribution of the cultivated area among the farmers. I have already discussed. So distribution of the cultivated land, the 30% and 20%, 30% and 40%. Large farmer having only the 30, sorry, not the 30, so 36%. So, 36%. Okay, the 36% and 20%. So cultivated area and number of the farmers. So there are 20% medium and the large farmer of the 80%. Small farmers are having only the 36%.
of the cultivated area. Medium, in the medium who a less, a large farmer having the 64% cultivated area. A small farmer have the less than the 2 hectares, where the medium and the large farmer the less land more than the 200. So just to show the figure and diagram. But who will the provide the labor? Who will provide the labor? The next topic. That you know, after the land labor इज पहले लैंड हुआ उसका लेबर स्किल की, तब जाके फिर कैपिटल और तब ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो लैंड के बाद अब लेबर, तो लेबर लेबर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी द फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलप एनी ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूशन? सबसे पहले हम लोग देखते थे कि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल के बाद तब हम लोग देखते हैं कि उसका कैसे यूटिलाइज करें, उसका लैंड कहाँ पर हम उसको इस्टेब्लिश करें, जो कहाँ से लैंड द रिसोर्स मिल रहा है। देन द मैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। मैन में इस क्या प्रोड्यूसर भी है, मैन कंज्यूमर भी है और मैन रिसोर्सेज भी है, सब मोस्ट वेल्युएबल है। तो विदाउट ह्यूमन बीइंग नो एनी द एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटी के बिना हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक कि ह्यूमन बीइंग का पार्टिसिपेट नहीं हो। तो फार्मिंग रिक्वायर ए द ग्रेट डील विद द हार्ड वर्क, नेचुरली है। The small farmer, along with the family, cultivated their own field. अब यहीं पर देखिए कि जो आप क्या हो, तो ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर। मैं स्मॉल फैमिली मेंबर हूँ, छोटा सा किसान हूँ, स्मॉल फार्मर हूँ, हमारे पास स्मॉल लैंड है बट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वी आर ऑल द फैमिली मेंबर्स आर इंगेज इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, बट द अनदर हैंड the big farmers, the pieces of cultivated land. So those farmers are depend in high technology, है ना, वो डिपेंड है टेक्नोलॉजी पर, डिपेंड है वो मशीन युग पर डिपेंड है। जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो सारा वो करे। बट जो स्मॉल फार्मर्स जो है वो अपने फैमिली के साथ इंगेज रहते हैं। दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग देमसेल्फ। मीडियम एंड द लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स हायर फॉर द लेबर वर्क इन द फील्ड। देखते हुए कि हमारे यहाँ से बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जो स्मॉल लैंडलेस पीपुल जिसको हम लोग कहते हैं, जो वर्कर ग्रुप जिसको कहते हैं, वो सारे यहाँ से वहाँ जाते हैं पंजाब हरियाणा में खेती करने, लेबर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ से वो लोग वहाँ जाते हैं वर्क करने के लिए। हमारे अब हमें अपने खेत पर, हमें अपने खेत पर काम करवाना है। क्रॉपिंग है, व्हीट है, राइस है, जो हार्वेस्टिंग के समय में करते हैं। तो उस स्थिति में, उस समय में जो है हम लोग हायर करते हैं। तो आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द एरिया। देखोगे कि हर एक पिक्चर्स में हम लोग देखते हैं। सो फार्मर, द फार्मर है, चाहे वो स्मॉल फार्मर है या मीडियम द लार्ज फार्मर। ए स्मॉल फार्मर तो खुद अलॉन्ग विथ फैमिली के साथ वो
अपने वर्क को डन करता है। बट जो लार्ज और मीडियम द ग्रुप कहो, ये टाइप तो नहीं कहेंगे, ग्रुप के जो फार्मर हैं जिसके पास मोर देन 2 हेक्टेयर्स लैंड रहते हैं, वो फार्मर वो हायर करते हैं लेबर को हायर करते हैं। फार्म लेबर्स कम अदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिली। यस, चाहे तो वो जो फार्म लेबर है, वो कृषक जो है, मजदूर जो है, लेबर जो है, वो वही व्यक्ति होगा जो लैंडलेस है या जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड उसका वीक हो, वो आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर हो। और द फैमिली कल्टिवेटेड ए स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड। अनलाइक फार्म लेबरर्स do not have the right over the crop grown, over the crop. Look at the map, देखो इसमें बताया गया है कि it is the difficult to find work this day, only the large farmers hire us, and that too for very limit the number of the day. Yes, कहता है फार्मर को, सुनो, फिर फार्मर कहता है कि वी हैव ट्रैक्टर्स ऑफ द प्लॉगिंग, हार्वेस्टर फॉर द हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर द थ्रेशिंग, सो इवन फॉर द रिमूविंग व्हील सम फार्मर्स स्पेयर द व्हील डिसाइडेड। कहता है कि मेरे पास ट्रैक्टर है खेती करने जोतने के लिए, हार्वेस्टर है हार्वेस्टिंग करने के लिए, थ्रेशर मशीन है थ्रेशिंग करने के लिए, इवन हमारे पास रिमूविंग व्हील भी है जिससे हम वाटर इरिगेशन कर सकते हैं, सब करते हैं। बट तो लेडीज क्या कहते हैं कि ग्राम क्या घनश्याम, द लार्ज फार्मर have just brought the harvester। सही बात है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट है, वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ से स्ट्रांग है, पूंजीपति है, पैसा उसके पास है, वो तो हार्वेस्टर भी खरीद लेगा, वो थ्रेशर मशीन भी खरीद लेगा, पंपिंग सेट भी खरीद, क्योंकि उसको लार्ज स्केल में फार्मिंग करना है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन द लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्टर। हाँ, कहता है कि इसलिए कि आपके पास सब कुछ है, इसलिए आप खेती सीजन हार्वेस्टिंग सीजन में बहुत कम वर्क करते हैं। सो योर एंड वर्क फॉर द लेस वन, है ना, लेस देन 5 months इन द होल ईयर। आई ओन द लोकल मनी। तो ये दो में डिस्कशन हो रहा है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास साधन है, हम उस संसार का यूटिलाइज करते हैं, मगर जो ये स्मॉल फार्मर की मैं बात कर रहा हूं, मगर जब हम हायर करते हैं मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर, ये जो कितना है ये देख रहे हैं कि ये डिजिटल कल्टिवेटेड लैंड एरिया है, तो ये 64% जो है ये आपको डिसाइड करता है। So crop grows the land, instead that they are the paid wages by the farmer for the who they work। जैसे ही आपके खेती हुआ, पहले तो डेली वेजेज जो वर्क होता है कि पर डे के हिसाब से पेमेंट मिला, या जब हम हायर करते हैं तो पूरा जो सीजन है स्टार्टिंग टू एंड, है ना, क्रॉपिंग पीरियड से लेकर हार्वेस्टिंग पीरियड तक वो कंटिन्यूअस उस फार्मर को इंगेज करके रखता है और उस तरह उसको वेजेस देता है, और जैसे ही लास्ट में वो पे करना पड़ता है। ये ज्यादातर हमारे बिहार, यूपी
कि जो लैंडलेस है और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वीक फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग पंजाब हरियाणा जहाँ एक्सटेंसिव साइंटिफिक मेथड से फार्मिंग होता है, लार्ज फार्मिंग होता है, उस जगह पर लोग को हायर किया जाता है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं, बिहार में भी जब बात करोगे ऐसे भी तुम लोग जब जाओगे पता करेगा कि जब हमारे यहाँ हार्वेस्ट क्रॉपिंग पीरियड की बात करते हैं, हार्वेस्टिंग पीरियड करते हैं, तो हम लोग लार्ज स्केल में लेबर को हायर करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बना रहे हो तो तुम्हारे पास, ठीक है, तुम्हारे पास लैंड है, कैपिटल है, स्किल है, मेटेरियल्स है, मगर उसमें सब कुछ है, मगर बनाने के लिए लेबर तो चाहिए। तो यहाँ लेबर दो तरह के ह्यूमन बींग का है, एक स्किल है, एक अनस्किल्ड है। स्किल जो है वो ट्रेन होता है हार्वेस्टिंग, मशीन चलाना, मगर लोडिंग और अनलोडिंग करना, कैरी करना, ये तो लेबर जो अनस्किल्ड के काम है। तो वेजेज जो उसकी जो मजदूरी हो, उसमें भी मजदूरी में भी आपको डिफरेंसेस होते हैं। The wages vary widely from region to region and crop to crop, from one the farm activity to another activity like the sowing and harvesting. There are also, yes, इस दोनों पीरियड में, सोइंग के समय में, क्रॉप सोइंग के समय में, क्रॉप हार्वेस्टिंग समय में वेजेज जो पर डे का जो वेजेज है उसमें वो डिफरेंसेज आते हैं। सही है। देयर आर ऑल्सो वाइड वेरिएशन द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट से एक फार्म लेबर द माइट be the employed on the daily basis, yes, and one the particular activities like the whole year। दोनों में हम डेली वेजेज काम करते हैं, हम जिस दिन वर्क करेंगे उस दिन हमको पे मिलेगा, चाहे वर्क हो या नहीं हो वर्क हो। अगर आपको हम होल ईयर के लिए आपको हायर किए हुए हैं तो आपका सैलरी, आपका वेजेज में डिफरेंस हो जाएगा। और जो पर डे वर्क कर रहा है, नो वर्क नो पे, ये डेली वेजेज की बात कर रहे हैं। आज वीक में हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वर्क कर रहे हैं तो इतने दिन के पेमेंट मिलेंगे, और संडे हॉलीडे है तो नहीं मिलेगा। मगर जो होल सेशन जो वर्क कर रहा है उसका संडे हो या हॉलीडे हो इक्वली पैसा उसमें दिक्कत नहीं है। सो फॉर द वन पार्टिकुलर, so for the activity like the harvesting or for the whole year, so Dala is the landless farm labor। एक किसी का नाम बोल दिए, महेश हो, सुरेश हो, जो भी हो, तो डाला is a landless farm labor who work on daily wages in Palampur, means he must regularly look for work। The minimum wages for a farm labor set by the government is 300 rupees लेबर डे। तो ये गवर्नमेंट फिक्स कर दिया है कि कम से कम, मिनिमम की बात करते हैं कि मैक्सिमम नहीं, मिनिमम की बात करते हैं कि आपको 300 रुपया पर डे आपको देना है। बट क्या कहता है कि डाला गेट ओनली द 150 रुपीज पर डे, सो दे हैव द competent job for the work among the farm labor, the Palapur. So the people agree to work for the lower wages. So Dala complained about the situation to the Ram Kali, who is the another farm labor. But Dala and Ram Kali among them the protest people in the village। कहते क्यों आप हमको दे रहे हैं 150 रुपीज और रामकली को दे रहे हैं 100,
वर्क सेम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, तो फिर डिफरेंसेज क्यों? डिफरेंसेज क्यों है? जो एक गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट जो फिक्स कर दिया है पे, वो पेमेंट उसके अनुसार भी आप नहीं दे रहे हैं, उसमें भी आप जो है ये कर रहे हैं, और उसके बाद में भी वेरी कर रहा है। एक ही वर्कर है, एक ही। अब जैसे कि हमारे यहाँ एक वर्कर आ रहा है मकान बनाने के लिए, जो एक्सपर्ट होते हैं, एक ठेकेदार होते हैं, एक एक्सपर्ट होते हैं, और एक लेबर उसके साथ होते हैं। तो एक्सपर्ट का वेजेस अगर 450 रुपया है, तो लेबर का 300 है। कुछ तो अंतर होता है यहाँ तो। जितना गवर्नमेंट का स्कीम है, जितना गवर्नमेंट का फिक्स प्राइस है, उससे भी आप उसको कम कर देते हो ना। बट सो